molecules are been inherited, है ना, these molecules are been inherited from one generation to another generation. तो ऐसा कौन सा molecule है, ठीक है, अभी तो ये आपको lesson बताया जा रहा है, but you all already know कि which is that molecule which has been inherited from one generation to another generation. ऐसा कौन सा molecule है, which molecule? DNA. Very good. So it is a DNA which has been inherited from one generation to the another generation. ठीक है, अभी आज हम सबको पता है because आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना, या आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, इसीलिए ये आपको ये चीज पता है कि बाबा यू नो दैट कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. बट ये जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे पता चला? हाउ दे ऑल मीन्स हाउ वी ऑल केम टू नो कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. फॉर दैट मेनी एक्सपेरिमेंट्स वाज बीन कैरिड आउट बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. अगेन कोई भी चीज जब होती है फर्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, है ना. जैसे इफ यू सी योर टेलीफोन इटसेल्फ, तो पहले के जमाने में का जो टेलीफोन था विच वाज विद अ बिग वायर्स एंड ऑल एंड इट वाज नॉट मोबाइल, है ना. बट फिर उसमें इन्वेंशन हुआ, फिर एक मोबाइल आया जिससे हम सिर्फ कॉलिंग कर सकते थे. बट आज आपके हाथ में जो मोबाइल है, इट इज नॉट जस्ट अ मोबाइल, इट इज एवरीथिंग फॉर नाउ. हम बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकते बिकॉज इट हैज एवरीथिंग इन इट, है ना. So means what, there is much more inventions and we have found out a very a small, मतलब एक ऐसा चीज जिसके अंदर सब चीज है, कैमरा भी है, म्यूजिक भी है, what not, ऐसा हो गया कि क्या नहीं है करके. तो वैसे ही जैसे डीएनए के बारे में साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट किया सोचने के लिए कि कौन सा चीज है, मींस एक जैसे अगर किसी का ब्लू आईज है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी किसी का ब्लू आईज दिख रहा है, या नेक्स्ट जनरेशन में भी किसी का ब्लैक आईज दिख रहा है, प्योर ब्लैक आईज. तो फिर ऐसे कैसे हो रहा है? व्हाट इज बीन देयर व्हिच इज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. So different experiments was been carried out by different scientists. So before jumping to the experiments, let us revise what is this DNA. So it's a polynucleotide. What is the DNA made up of? All of you can see the screen now. Yes. DNA made up of, so it is made up of the nitrogen bases. It is made up of a sugar which is a pentose sugar, deoxyribose pentose sugar, and the phosphate group. The nitrogen bases are purines and pyrimidines. Purines में आते हैं adenine and guanine, and pyrimidines में आते हैं cytosine and thymine. You have already learned the DNA का double helix structure in which the backbone is made up of phosphate and sugar, है ना. backbone किससे बना होता है? phosphate and sugar का बना होता है. और बीच बीच में जो steps के जैसे नजर आते हैं, they are made up of the nitrogen bases. ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस में भी ऑलवेज एडेनाइन इज पेयर्ड विथ thiamine with double hydrogen bond, and guanine is been paired with cytosine with a triple hydrogen bond. Correct है ना? So all these things you have already learned. So let us just revise what is again the DNA. So nitrogenous base is linked to the pentose sugar through which linkage? All this linkage आपको याद रखना बहुत बहुत जरूरी है for your board exam. Through the glycosidic linkage to form a nucleoside, है ना. to form what? To nucleoside. phosphate group कहाँ पर attach होता है? 5' पे, ठीक है, of the nucleoside through phosphoester linkage. Again the linkage का नाम is very important, and a nucleotide is formed. Two nucleotides are linked through 3'5' phosphodiester linkage to form the dinucleotide, है ना. अगर दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डाइन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, और ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, है ना. एक है तो न्यूक्लियोटाइड, दो है तो डाइन्यूक्लियोटाइड, 3 है तो ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे जुड़ते गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड. So polynucleotide has a free sugar at its 5' and a free phosphate at its 3' end. I hope this point is clear to all of you. Yes. So Watson and Crick, they were the two scientists who had described the DNA ka double helix structure. So it is made up of two polynucleotides. Backbone, as I've told you just now, it is made up of sugar and phosphate with the nitrogen base inside.
There are hydrogen bonds between the nitrogen bases. Adenine always pairs with thymine with 2 hydrogen bond, very important. Guanine always pair with cytosine with 3 bonds, 3 hydrogen bond. Both the chains, they are anti-parallel, so they are showing polarity. 2 chains are coiled in a right-hand fashion, and pitch is which is called as a helix, which is about 3.4 nanometer, and 10 base pair in each turn. Again very important, हर एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 10 बेस पेयर्स in each turn. Okay, now again you have learned the structure. ये structure आपने पढ़ा हुआ है या नहीं? न्यूक्लियोसोम का structure, yes or no? Yes. Which lesson you have learned this structure? कौन से लेसन में पढ़ा है ये स्ट्रक्चर पूरा? इसके ऊपर आपको एक पूरा लेसन भी है ना, अगेन इन विच यू हैव लर्न द स्ट्रक्चर, आया नहीं? बायोमोलिक्यूल्स. Okay, so this is how the nucleosome looks like. Okay, it is the nucleosome. We will be learning again in this particular lesson also. Okay, now let us first learn about the Griffiths-ka experiment. I request all of you to take out your textbook. Please take out your textbook if you have not taken. Take out page number 70 of your textbook. ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट. अब ये एक्सपेरिमेंट क्यों किए जा रहे हैं? देखो अभी आपको पढ़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं. ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट. 3 एक्सपेरिमेंट्स आर बीन देयर. ठीक है, 3 experiments are been there in your textbook. I hope you have seen. You can tick mark all the 3 experiments in your textbook. Griffith का experiments, एवरी मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट एंड हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट. अच्छा, तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट किस लिए हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों भी एक्सपेरिमेंट ये फाइंड आउट करने के लिए है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, ये तीनों भी एक्सपेरिमेंट हम क्या करने के लिए कर रहे हैं? टू फाइंड आउट हाउ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. अभी हमें मालूम है कि सेल के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. सेल के अंदर तो है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स भी होता है कि नहीं? देयर आर प्रोटीन्स, देयर आर आरएनए, देयर आर सम एंजाइम्स आल्सो. बट कैसे पता चला कि नहीं डीएनए ही है जो जेनेटिक है? समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? अगर हम सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो उसमें हमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स मिलेंगे, है ना? डीएनए भी मिलेगा और साथ में आरएनए भी मिलेगा ना. आरएनए इज आल्सो जेनेटिक मटेरियल, बट नॉट इन केस ऑफ आर्स. इट इज द जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ द वायरस, है ना? आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए का होता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हुआ, ये कैसे पता चला कि यही जेनेटिक मटेरियल है? तो उसके लिए ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया इन 1928. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया ग्रिफिथ बाबा ने? हाँ, इन 1928 ही वाज अ ब्रिटिश. ठीक है, उसने बैक्टीरिया लिया और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये. अभी नाम से ही पता चल रहा है ये बैक्टीरिया क्या करेगा? निमोनिया क्रिएट करेगा, लंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes. Yes. हाँ, तो ये ग्रिफिथ बाबा ने क्या किया? ये बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया, जिससे कि निमोनिया होता है कोई भी मैमल्स में. अब मैमल्स एक्सपेरिमेंट के लिए हम जनरली ये माइस यूज करते हैं, तो हमें ये प्रूव करना था कि ऐसा कौन सा चीज है जो पास ऑन होता है. तो ये ग्रिफिथ बाबा ने 2 स्ट्रेन्स लिए इस निमोनिया बैक्टीरिया के, एक वायरुलेंट टाइप और एक नॉन वायरुलेंट टाइप. इफ यू हैव टेकन द टेक्स्ट बुक प्लीज मार्क इट. ही हैज टेकन 2 स्ट्रेन वायरुलेंट टाइप एंड नॉन वायरुलेंट टाइप. अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ा, मैंने जैसे अभी आप कोरोना वायरस का वैक्सीन लग रहा है सबको, तो वैक्सीन लग रहा है मतलब कि वैक्सीन में क्या लग रहा है बेटा? टेल मी.
क्या लगाया जा रहा है वैक्सीन में? वैक्सीनेशन में क्या किया जा रहा है? इनएक्टिव वायरस। इनएक्टिव वायरस मतलब नॉन वायरुलेंट वायरस, है ना, जिससे क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम इवोक होगा, करेक्ट है ना, ट्रिगर होगा। यस, तो इन्होंने भी क्या किया ग्रिफिथ ने कि इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन लिए, एक वायरुलेंट टाइप, वायरुलेंट है मतलब नाम से ही समझ रहा है कि जो जिससे कि डेथ हो सकता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो जो वायरुलेंट टाइप था ना वो स्मूथ टाइप का बैक्टीरिया, स्मूथ मतलब क्या हो, जो उसका आउटर मोस्ट कैप्सूल है वो स्मूथ है, ठीक है, और पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग है। और जो दूसरा स्ट्रेन उन्होंने लिया वो नॉन वायरुलेंट था और जो उसका आउटर कवरिंग था वो रफ था, और ऊपर का जो आउटर कैप्सूल होता है वो रफ है और नॉन पैथोजेनिक है, मतलब उससे मरेगा नहीं कोई भी। अब what he did, he has taken the mice. Now in the first diagram you can see that what he has done, he has injected the rough strain. R strain दिख रहा है मतलब rough strain. तो रफ स्ट्रेन मतलब क्या था, नॉन वायरुलेंट था, जो ब्लू कलर से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यस, नॉन वायरुलेंट था। तो ऑब्वियसली नॉन वायरुलेंट था तो माइस को कुछ होगा नहीं, माउस इज अलाइव। फिर इसने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन लिया, मतलब जो वायरुलेंट वाला स्ट्रेन था उसको हमने एस टाइप नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एस टाइप। उसको माइस में इंजेक्ट किया, आप देख सकते हो माउस को निमोनिया हो गया, मर गया। फिर व्हाट ही डिड, इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन लिया पर उसको हीट किल्ड कर दिया, मतलब वायरुलेंट ही लिया पर उसको हीट किल्ड कर दिया, मतलब उसकी जो वायरुलेंट वाला प्रॉब्लम था, जो पैथोजेनिसिटी था, उसको निकाल दिया। अब आप उसका डायग्राम का शेप भी देख सकते हो, ऊपर स्टार शेप का आपको दिख रहा है। और जब वो उन्होंने इंजेक्ट किया तो माउस जिंदा था क्योंकि उसका हीट किल्ड फॉर्म था वो। अब इनको आइडिया आया कि चलो क्यों ना हम ये हीट किल्ड जिससे माउस नहीं मरता है, स्मूथ ये जो रफ वाला है जिससे माउस नहीं मरता, मतलब देखो फर्स्ट वाला डायग्राम में माउस नहीं मर रहा है, थर्ड वाले डायग्राम में माउस नहीं मर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जो रफ स्ट्रेन है आर स्ट्रेन एंड हीट किल स्ट्रेन को दोनों को मिक्स कर दिया और फिर इंजेक्ट किया इस माउस को, तो माउस बेचारा मर गया। इससे इनको क्या पता चला कि देर इज समथिंग, देर इज समथिंग। हाँ, अब वो समथिंग ही वाज नॉट अवेयर, ये 1928 की बात है ना। सो व्हाट ही सेड कि देर इज समथिंग व्हिच इज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, फ्रॉम दी व्हाट रफ स्ट्रेन टू द हीट किल स्ट्रेन टू मेक इट वायरुलेंट। मतलब ऐसा कुछ तो चीज है जो आर स्ट्रेन से हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन में चला गया जिससे कि वो वायरुलेंट हो गया और ये माइस मर गया। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? एंड दैट समथिंग he called it as a transforming principle। क्या बोला उन्होंने, नाम क्या दे दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि उनको डीएनए के बारे में पता ही नहीं था। आज हमें पता चला कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को हमने एक नाम दे दिया है, दैट इज द डीएनए। अंडरस्टूड? Yes. So what he concluded, the R strain bacteria has taken up something from the heat killed one, and because of which it has become virulent and the mice has died. And that has been called as a transforming principle. All of you take out the textbook page number 71. वो डायग्राम के ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को अंडरलाइन करो। Done? Yes? All of you have done it? Yes. Yes. Wait, I will try to share the textbook also with you all. Okay. Till then, see the next experiment. We'll see the next experiment from, please refer the textbook. Every McCarthy and MacLeod experiment, please underline in your textbook also. अब क्या हो गया देखो, 1928 से अब 1944 हो गए, मतलब ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो गए, ठीक है। तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि नहीं, अब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो क्या, कौन सा चीज है, बिकॉज उनको पता चला कि सेल में तो बहुत सारी चीजें होती है,
सेल के अंदर आरएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होता है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर। तो फिर सेल के अंदर से कौन सा चीज है जो ट्रांसफॉर्मिंग है? तो उनको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ एंड दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड डूइंग अ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, ये तीनों साइंटिस्ट लोगों ने सेल के अंदर से डीएनए निकाला, उसको अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, आरएनए निकाला, उसको अलग टेस्ट ट्यूब में डाला, प्रोटीन को निकाला, एंजाइम्स को निकाला, सब उसको आपको अलग 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 टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, और सबके अंदर जैसे टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में डीएनए है, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में आरएनए, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में प्रोटीन है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या डाला, ये एस हीट किल्ड वाला एस स्ट्रेन एंड आर सेल्स डाला। समझा मेरी बात मैंने क्या बोला? ठीक है, सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर, आर यू गेटिंग मी? यस और नो? Yes. ओके, तो हर एक तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने वही सेम चीज डाला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन डाला। फिर कौन से टेस्ट ट्यूब में आना चाहिए बताओ मुझे, कौन से स्ट्रेन में आर स्ट्रेन डेडली होना चाहिए? कौन से टेस्ट ट्यूब में? टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में आर डीएनए, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में आरएनए, टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में प्रोटीन है। कौन से टेस्ट ट्यूब में होना चाहिए? DNA. डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में। तो यस, तो दैट वाज द रिजल्ट। तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब में से सिर्फ डीएनए वाले टेस्ट ट्यूब में क्या था, आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट बन चुका था। ठीक है, सो अगेन दे confirm that this DNA is the genetic material over here. ठीक है, so you all please take out your textbook and please underline. Can you get this page 71 पे? They purified DNA, RNA, protein and other material. See the last line, only DNA was able to transfer the harmless strain R into the deadly strain S. Yes. In that experiment they did with the help of the enzyme also. They discovered that protein digesting enzyme, जिसको हम enzymes बोलते हैं जैसे कि proteosis, RNA digesting enzyme जिसको हम RNAs बोलते हैं, did not affect the transformation. So the transformation substance was neither a protein nor a RNA. Please underline. Transforming substance was neither a protein nor a RNA. It was only the DNA. So underline the last one. Experiments proves that the transforming principle is DNA. But सब में रहता है. So all the biologists were not convinced with this. पहले के जमाने में होता था ना कि बाबा कोई अच्छा कर देगा तो उसको ज्यादा नाम हो जाएगा, तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन लिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, जबकि वी नो दैट कि दिस एक्सपेरिमेंट इज मच मोर क्लियर, है ना, टू स्टेट दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. But again, many scientists were not convinced with this factor. And they proved that DNA is a genetic material, not the protein. Understood? Yes. Yes. Okay. अब जब ऐसा हो गया, फिर वापस बहुत सालों, थोड़े सालों के बाद, हाँ, there were two scientists, Hershey and Chase. These are the surnames, Hershey and Chase. अगेन इन्होंने भी क्या प्रूव करना चाहा कि नहीं, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, तो इन्होंने किसके मदद से किया? अभी बैक्टीरियोफेज के मदद से. व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? बैक्टीरियोफेज किसको बोला जाता है? Virus that kill bacteria. वेरी गुड. नॉट किल बच्चा, विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया. ठीक है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया, इज कॉल्ड एज अ बैक्टीरियोफेज. Yes. एक मिनट, आपको टेक्स्ट बुक में दिया भी होगा. So see the paragraph, you can just underline the definition of bacteriophage. Virus that infects bacteria is called as a bacteriophage, which are made up of DNA and protein. अच्छा, अब इन साइंटिस्ट लोगों ने किसका मदद लिया? बैक्टीरियोफेज का मदद लिया और रेडियो एक्टिव
फॉस्फोरस का मदद लिया। तो इनके पास इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को दो चीजों से प्रूव किया, एक तो बैक्टीरियोफेज और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की मदद से, ठीक है। सो इन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, P32 फॉर सम वायरस एंड radioactive sulfur, that is S35 for some other one, ठीक है। What they did, they grew some virus on a medium that contained the radioactive phosphorus, which contained the radioactive sulfur also. Virus were grown in the presence of radioactive phosphorus, contained the radioactive DNA labeling. Now you can see this diagram and you can very clearly understand. See, in the first diagram, what you can see, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये ऊपर तक ही है, ये अंदर नहीं जा पा रहा है। बट दूसरे वाले डायग्राम में यू कैन सी दैट रेड पार्ट इज गोइंग इनसाइड, है ना, दैट रेड पार्ट इज बीन गोइंग इनसाइड बैक्टीरियोफेजेस का। सो फर्स्ट वन इज अ सल्फर लेबल एंड सेकेंड वन इज अ फॉस्फोरस लेबल। अभी आपको पता है कि फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, डीएनए की आरएनए में, डीएनए डीएनए में फॉस्फोरस होता है। और सल्फर किस में होता है, प्रोटीन में, प्रोटीन कंटेन सल्फर ना। तो Yes. अगर फॉस्फोरस अंदर जा रहा है, फॉस्फोरस अंदर जा रहा है मतलब कौन अंदर गया, कौन ट्रांसफर हुआ, डीएनए। डीएनए तो इट वाज वेरी सिंपल, क्योंकि फॉस्फोरस वाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अगर अंदर जा रहा है सेल के, दैट मींस द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। सो अगेन ये एक्सपेरिमेंट से व्हाट दे प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ई कोली बैक्टीरिया, they proved that again the DNA is the genetic material. You can just go through this paragraph, all of you please go through, you can turn the page and you can see these diagrams are important, ये diagram important है, तो आपको इसको मार्क करो कि you have to draw the diagram in your book। बाकी के जो दो डायग्राम थे ना, ग्रिफिथ वाला और एवरी मैककार्टी वाला, वो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट यू डोंट हैव टू ड्रॉ। So 4.1 and 4.2 diagram not important, but 4.3 diagram important. ये वाला diagram important है, you have to draw this diagram. Got it? Yes. I hope you have understood this part. You can just go through after the lecture. Okay, कोई भी genetic material का क्या क्या characteristics होता है? They are able to replicate. Chemically and structurally they are all stable. They help in mutation, which is very important for evolution. They are able to express itself in the form of a Mendelian character, है ना। कोई अभी हम डीएनए को ही देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल है। डीएनए के अंदर म्यूटेशन भी होता है ना म्यूटेशन। यस डीएनए के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ही तो इवोल्यूशन हुआ है, आज हम टेल लेस हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन, इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ इन द मेंडेलियन कैरेक्टर। लेट अस टॉक अबाउट द आरएनए नाउ। आरएनए की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर भी नाइट्रोजन बेस होता है, उसमें भी पेंटोस शुगर होता है, उसमें भी फॉस्फेट ग्रुप होता है। बट सिर्फ फर्क किधर है, पिरामिडिन में। पिरामिडिन्स में साइट दिस thiamine is replaced by the uracil. There are three types of RNA you have to learn: messenger RNA, transfer RNA which is a soluble one, and the ribosomal RNA which is attached to the ribosomes. Ribosome is a cell organelle which are being called as a protein factories, है ना। राइबोसोम्स क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज होता है। तो आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के साथ इन्वॉल्व रहता है। और हमारे केस में ह्यूमन बीइंग्स में आरएनए का काम क्या है, क्या काम है आरएनए का, Protein synthesis. synthesis very good, it helps in the protein synthesis which is a very important process, सबसे important process है protein synthesis।
क्योंकि प्रोटीन नहीं तो एंजाइम्स नहीं. So afterwards, I will be teaching you the structures of the tRNAs and all the RNA structures I will be teaching you. Okay, just a second, beta. I will share the textbook. Till then, what you will be doing, you will be learning this experiment. Hershey and Chase experiment, please go through. I will share the textbook. Madam, screen sharing karo na, please. Yes. Okay. So, what is the length of a DNA helix? It's about 2.2 meters. Underline all of you in your textbook. It is about 2.2 meters. And what is the size of a nucleus? It is 10 raised to what?
What is the size of a nucleus? It has been given down. What is the size of a nucleus? 10⁻⁻⁶ meter. हाँ, तो इतने छोटे से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर का अगर डीएनए है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डीएनए? इट हैज बीन टोल्ड दैट कि यहाँ से लेके सन तक और सन से लेके हमारे वापस बैक टू बॉडी तक इतना बड़ा डीएनए हमारे बॉडी में है ना? क्योंकि हर एक सेल के अंदर डीएनए है और अपने पास तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो इतना बड़ा डीएनए जो है, यस, 2.2 मीटर्स का डीएनए इतने छोटे से न्यूक्लियस में अगर प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली इट विल बी कंडेंस्ड, इट विल बी सुपर कॉइल्ड, है ना? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर which has been fitted into this small nucleus. So first you have to learn distinguish between a prokaryotic and a eukaryotic genetic material. तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वी नो दैट, नाम से ही पता चलता है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, मतलब they don't have a well defined nucleus. So let us take an example of a E. coli bacteria. ठीक है, they don't have a well organized nucleus, they don't have a nuclear membrane also, they don't have a nucleolus also, है ना? इसके लिए उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है, हम उसे न्यूक्लियस नहीं कह के हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, है ना? You have learned all these things in your 11th standard कि हम प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस न बोल के हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, करेक्ट है ना? क्योंकि न्यूक्लियोइड कैसा होता है? छोटा सा होता है, एकदम सर्कुलर होता है, और उसके अंदर डीएनए भी कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड सर्कुलर डीएनए होता है। पर हमारे केस में ऐसा नहीं, हमारे केस में कैसा है? लीनियर डीएनए है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, अंडरस्टूड? और उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 4.6 मिलियन बेस पेयर, करेक्ट? सो अंडरलाइन ऑल ऑफ यू. Please underline the first paragraph. Nucleoid is small, circular, highly folded with a naked ring of DNA. Underline. Yes. Okay. Next, to the next paragraph. The negatively charged DNA becomes circular. Why negatively charged? Why DNA is negatively charged? Why DNA is negatively charged? Tell me. Yes. So you will be finding out the answer for this. Why DNA are negatively charged? और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से ही तो आपने आपका बायोटेक्नोलॉजी लेसन पढ़ के हुआ है. Yes. हाँ, तो आपने उसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह सब पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर Yes. आपने, हाँ, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव रॉड्स की तरफ जाता है. तो व्हाई दे आर नेगेटिव चार्ज? व्हाट इज बीन प्रेजेंट इन द डीएनए व्हिच इज मेकिंग इट नेगेटिव? Phosphate. हाँ, Phosphate. फॉस्फेट ग्रुप की वजह से नेगेटिव है. सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप पे एक ऑक्सीजन एटम रहता है, वो नेगेटिव है. यस, ठीक है, वेरी गुड. ओके, सो ये चीज याद रखो, हाँ बेटा, प्लीज अंडरलाइन. So DNA becomes they are negatively charged because becomes circular, and they are forming a loop. You can see the diagram above. They are forming a loop like structure, ठीक है, which has been assisted by the RNA connectors. They are been coiled and supercoiled. This coiling is assisted by a positively charged histone like DNA binding protein, जिसे हम HU कहते हैं. All of you please underline. अब देखो, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, उसको कॉइल करके रखने के लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है? प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. The coiling or the packaging is been assisted, मतलब done by positively charged HU. मिला सबको? Histone like, histone is a protein, histone like DNA binding protein. It is histone alike. It is not a histone protein because it's a prokaryotic cell. साथ में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, लाइक
कौन से एंजाइम्स? डीएनए गाइरेज, डीएनए topoisomerase 1 for making the supercoiled state. So the last 3-4 lines are very important. So for a prokaryotic cells, which are the key points? What are the important points? First of all, we have learned the prokaryotic cell in a E. coli bacteria. They don't have a well-defined nucleus. They don't have a nuclear membrane also, and therefore it has been called as a prokaryotes. है ना? They are having a nucleoid. The nucleoid के अंदर क्या होता है? Circular DNA होता है और कैसा होता है? Naked DNA होता है. ठीक है? Obviously यहाँ पे भी super coiled structure है. फिर आपको क्या बताना है कि ये coiling किसके वजह से held है? हमें पता है DNA negative है, तो उसको positive चीज से ही coiled करके रखा जा सकता है. तो कौन से पॉजिटिव आयन चीजें हैं जिससे कि उसको सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में रखा जाता है? दे आर हिस्टोन के जैसा डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हिस्टोन लाइक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, इसको हमने नाम क्या दिया? HU. साथ में प्रोटीन्स है, एंजाइम्स, और ये दो एंजाइम्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. विच आर द टू एंजाइम? डीएनए गाइरेज एंड डीएनए टोपोआइसोमरेज 1, which is maintaining the supercoil. Understood? Yes. चलो अब हमें जो पढ़ना है वो ह्यूमन बीइंग का ही लेटर से हम सबके अंदर है, दैट इज पैकेजिंग इन अ यूकैरियोटिक सेल. पैकेजिंग इन अ यूकैरियोटिक सेल. तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम. स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम. आई विल बी टीचिंग यू ऑल. बस मेरा थोड़ा पीपीटी का ये हो गया बच्चा आज. ओके, so let me teach you from the textbook itself. You can underline so that when you learn the things will be much more clear to you. यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है. एवरीथिंग इज बीन देयर. न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं. जब भी माइटोसिस स्टार्ट होता है या मियोसिस स्टार्ट होता है, उस दौरान क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, है ना? इसके पहले ये क्या रहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं. इज दैट वेरी क्लियर? Yes. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? ये कौन से फॉर्म में होते हैं? थ्रेड के फॉर्म में, जिसे हम क्रोमैटिन नेटवर्क भी कह सकते हो आप, या क्रोमैटिन थ्रेड भी कह सकते हो. जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, जब माइटोसिस या मियोसिस स्टार्ट होता है, उस टाइम पे ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क्स हैं ये कंडेंस होते हैं. कंडेंस मतलब गाढ़ा, मोटा हो जाते हैं. कंडेंस्ड मिल्क आपने सुना है ना, मतलब गाढ़ा, कोई भी चीज मोटा हो जाना. तो ये मतलब थिक हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं और हमें क्रोमोसोम नजर आते हैं. अगेन क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं. पर अभी हम यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं पढ़ने वाले, हम क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वो पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है. पर अब ये डीएनए अगर 2.2 मीटर्स का है तो ये कैसे हमारे छोटे से न्यूक्लियस में एडजस्ट हुआ है? तो दैट वी आर गोइंग टू लर्न कि हाउ इट इज बीन कॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ अ हिस्टोन प्रोटीन. तो ये जो न्यूक्लियोसोम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे डीएनए रैप्ड है. आप देख सकते हो जो रेड कलर का आपको थ्रेड नजर आ रहा है न्यूक्लियोसोम के डायग्राम में, जो बॉल दिख रहे हैं ना, जो येलो कलर के बॉल दिख रहे हैं, दे आर द प्रोटीन्स. और जो उसके ऊपर रेड कलर का रैपिंग है ना, वो डीएनए का रैपिंग है. समझ में आया? तो ऐसे 8 बॉल्स होते हैं, हिस्टोन के 8 बॉल्स होते हैं जिसके ऊपर डीएनए का रैपिंग होता है. 2 बार रैपिंग होता है, एक पूरा रैपिंग और एक 3/4 रैपिंग. समझा मेरी बात? मैंने क्या बोला? अंडरस्टूड? ठीक है, 8 balls of protein. Understood? Yes or no beta? Yes, ma'am. 8 balls of protein. 8 balls of protein के ऊपर क्या है? 8 balls of protein के ऊपर उसके समझो 8 balls बीच में सेंटर में है और उसके ऊपर डीएनए का रैप है, डीएनए का थ्रेड का रैपिंग है. तो एक पूरा रैपिंग होता है और एक 3/4 रैपिंग होता है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है विथ प्रोटीन एंड डीएनए उसके ऊपर रैप किया हो, ये स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं.
न्यूक्लियोसोम। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर। अगेन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो कॉर्नबर्ग इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। Okay, so let us understand that histone are the protein which are rich in lysine and arginine. Again, please underline. Histones are the protein which are rich in lysine and arginine. What are these lysine and arginine? They are the amino acids. है ना, these are amino acids. Proteins are made up of amino acids. तो histone protein के अंदर ये lysine और arginine protein होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दिस की वजह से ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अमाइनो एसिड की वजह से हिस्टोन इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप पहला पॉइंट क्या बताओगे कि हिस्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज। तो बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई हिस्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट द हिस्टोन्स आर मेड अप ऑफ द amino acids which are rich in lysine and arginine, which is making it positive. Understood? Yes. Okay, so now these histones are made up of histone plus protamine. Protamine, you can underline. हिस्टोन्स के अंदर कितने प्रोटीन्स होते हैं, 8 मॉलिक्यूल्स हैं, 8 यूनिट्स है उसके अंदर, इसीलिए 8 को हम ऑक्टा कहते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। अब हमें मालूम है ये जो बॉल्स है ये पॉजिटिव है और डीएनए नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन आएगा। यस, तो पॉजिटिव डीएनए क्या होगा, रैप्ड होगा अराउंड दिस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, forming a structure which is called as a nucleosome. So 1 mark question again for the board exam. What is nucleosome? What is nucleosome? Tell me, who will tell me? Looking at the textbook, tell me. Tell me fast. Yes. Aditi Award. Aditi Award. Aditi Award batch 3. Arin Kumar. Arin Kumar. No response. Girish Patil. मैं नाम नोट डाउन भी करते जा रही हूँ। गिरीश पाटिल, किसी का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। मयूर देवरे। Yes, miss. मयूर, टेल मी बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? लुकिंग एट योर टेक्स्ट बुक, टेल मी व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? Section of DNA that is wrapped around core of proteins. How many protein? What is the protein called as? What is the name of the protein जिसके आगे wrapped है, किस DNA wrapped है जिसके आजू बाजू? Yes, मयूर। Don't know. तन्मय, तन्मय। यश, तानिया काटकर, तानिया काटकर। मैडम आप प्लीज नोट डाउन कीजिए, ये बच्चे एक भी बार रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मयूर को छोड़ के किसी ने रेस्पॉन्ड नहीं किया है। मनाली चौहान। Yes, ma'am. विच इज द प्रोटीन? क्या है प्रोटीन का नाम? Histone. हिस्टोन प्रोटीन, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट सानिका मस्के। सानिका मस्के,
मिताली जाधव, सिया, सिया, श्रेया, Yes, miss. okay. How many histones are there? How many histone proteins are there? And what they are called as? How many histone proteins are there and what they are called as? ध्यान किधर है सबका? विशाखा राठौड़. Hello, ma'am. हाँ. Ma'am, you called my name. Ah, yes, I called your name. Where were you? Miss, my mic was not getting on. Huh? Hello. Ah, yes, tell me. Miss, I'm having net issue. What? Hello, ma'am. What you are having? Ah, yes, what you are telling? Miss, I'm having net issue. Network issue you are having. Yes. Okay. तो मेरा आवाज आ रहा था कि नहीं? मिस बीच-बीच में आ रहा था. अच्छा, बीच बीच में आ रहा था. ओके. अश्वती नायर, प्रचित, प्रचित, हेलो मैडम. हाँ मैम. Pratik experiments. We have learned the 3 experiments. That is a Griffith ka experiment with the help of this 4 mouse experiment. Then we have learned the Avery McCarthy experiment, and then we have learned the Hershey and Chase experiment, in which they have used the bacteriophage and the radioactive sulfur and the phosphorus. Then we have learned the DNA packaging. We know that the DNA is about 2.2 meters. So such a long DNA, if it has been fixed inside the cell, and cell जो हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसा सेल जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके न्यूक्लियस के अंदर अगर 2.2 मीटर का डीएनए है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी एंड इट इज सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर. So we have learned about how the supercoiling has been done. So before learning the supercoiling, we have seen the distinguish between a prokaryotic and a eukaryotic cell. So prokaryotic cell के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि prokaryotic cell के अंदर proper nucleus नहीं होता है, हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं. वहां पे डीएनए नेकेड होता है, सर्कुलर होता है, एंड ये जो सर्कुलर डीएनए है, इट has been what to say, it has been assisted with the help of a positively charged histone like binding protein. Histone like binding protein जिसे हम abbreviate करते हैं as HU. उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, और एंजाइम्स का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ डीएनए लाइगाइरेज एंड अ डीएनए टोपोआइसोमरेज 1. फिर वी हैव स्टार्टेड विद द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल में मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, बिकॉज उसी के ऊपर हमारा डीएनए रैप्ड रहता है. ये हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन से अमाइनो एसिड से बना है, उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये 2 अमाइनो एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, इसी के लिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. फिर हमने देखा कि हिस्टोन जो है वो प्रोटामाइंस के साथ प्रेजेंट होता है. इसके ऊपर हमारा डीएनए रैप्ड होता है, एक पूरा राउंड एंड एक 3/4 राउंड. ये पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, वी आर कॉलिंग इट एज अ न्यूक्लियोसोम. फिर मैंने आपको बताया कि हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड 8 मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसे हम ऑक्टामियर कहते हैं. सो वी विल कंप्लीट दैट, व्हिच आर दैट 8 मॉलिक्यूल्स. सो 8 मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स डबल होने की वजह से 8 मॉलिक्यूल्स बना है. तो यू कैन अंडरलाइन दैट
H2A के 2 होते हैं, H2B के 2 होते हैं, H3 2 होते हैं एंड H4 2 होते हैं। तो ये सब डबल होने की वजह से 8 मॉलिक्यूल्स हो गया है, ठीक है। So 2 molecules of each of 4 types of histone protein, that is H2A, H2B, H3 and H4. H2A भी 2 है, H2B भी 2 है, H3 भी 2 है and H4 भी 2 है, तो हो गए 8 molecules। और जो H1 प्रोटीन है वो अलग है। H1 प्रोटीन it is binding the DNA thread, ठीक है, वेयर इट लीव्स द न्यूक्लियोसोम। आप देख सकते हो डायग्राम में H1 को ग्रीन कलर से डिनोट किया गया है, बिकॉज वो अलग प्रोटीन है जो जहां से डीएनए खत्म हो रहा है और फिर नेक्स्ट डीएनए स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? आप इस डायग्राम पे भी देख सकते हो, स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे येलो कलर से डिनोट किया गया है। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. ठीक है। सो द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू इज to draw the figure 4.3, 4.4 and 4.5. ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करना है। 4.3, 4.4 and 4.5 ये तीनों डायग्राम्स ड्रॉ करके रखना है। अंडरस्टूड? Yes. Yes. एंड स्टडी वेल। इतना मैं स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोली तो भी कोई